are the in general definitions. Okay, and just you have to just remember this definition. Okay, so x, y, z. Okay, these are called as the actual values. And what is the absolute error? Absolute error is actually a difference of measured value and the actual value. And that in this topic, okay, we denote that is nothing but a change in x, na. Okay, the measured value and actual value, whatever change you can see, that is called as the change in x, or that is called as error present in x. Okay, so and in this topic, okay, we denote these values by dx. So dx is what? Dx is gives the absolute error in x. Dy is what? Dy gives you the absolute error in y. Similarly, dz gives you the absolute error in z. Okay, so this is the definition of absolute error, or the errors present in the given variable x. Now, how you define the relative error? And relative error is actually the absolute error upon actual value. Okay, relative error is what? Absolute error upon actual value, that is dx upon x, comma dy upon y, comma dz upon z. This gives you the relative errors present in x, y, z. ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, जस्ट कैलकुलेट द रिलेटिव एरर प्रेजेंट इन गिवन वेरिएबल, या जस्ट कैलकुलेट द परसेंटेज एरर प्रेजेंट इन अ गिवन वेरिएबल. ज्यादातर क्वेश्चन आपको परसेंटेज एरर के ही थे. ओके, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन फॉर रिलेटिव एरर, डेफिनेशन फॉर एब्सोल्यूट एरर एंड सो ऑन. ठीक है, and the percentage error is what? Just multiply the relative error by 100. That gives you the percentage error present in variable x, variable y, and variable z. ठीक है, okay, I think we almost have completed this topic. Okay, so I will quickly that last question. Only one question is remaining, which is also not that much important. Okay, I tell you. Okay, so it is quite difficult to give a question, okay, on this particular part, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आप डायरेक्टली कैल्स में भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो एमसीक्यूज में सेट करना मतलब सेट होने के चांसेस, या एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है. ठीक है, सो ये पार्ट भी आपने 11th-12th में आपने कहीं पे ना कहीं पे ये मतलब यूज किया होगा टू कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन लाइक एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर. ये सारी चीज़ आप डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से आप कैलकुलेट करते थे. But here, so ordinary derivative means what? In that particular case, you will have only one variable. For example, अगर 3.82 का square अगर ये आपको calculate करना है, then you can use the ordinary derivative part that you already completed in your 12th standard. कहीं पे ना कहीं पे आपने ये application 100% देखा है, derivative का application to find the error present in the given value, or to calculate the approximate value of like say 3.82 का square. अगर आपको इसके approximate value calculate करनी है, in that case also you can use the derivative concept. क्योंकि क्या होता है, इसके आगे का जो नंबर है ना, 3.82 का आगे का नंबर क्या है, 4. तो 4 का यूज करके आप 3.82 स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये आपने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, एंड बट एट दैट टाइम यू विल हैव ओनली वन वेरिएबल. नाउ इन अवर सिलेबस वी आर वर्किंग हियर, you will have two independent variable. Okay, two independent variable gives you the partial derivative. Okay, so here so using partial derivative, basically we have to find value of this expression है ना, 3.82 square plus 2 in bracket 2.1 cube bracket raised to 1.1/5 ना. तो कैल्सी में तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा, बट हाउ यू फाइंड इट्स वैल्यू, ओके, यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, सो फॉर दैट let us construct a function, okay, corresponding to this given expression. ठीक है, so denote this first value by x, so x square plus 2y cube, okay, raised to 1/5. Okay, so here I have to just consider a function, okay, a function corresponding to this given expression, okay, x square plus 2y cube, क्योंकि यही तो इन्हीं वैल्यूज में तो प्रॉब्लम है ना, 3.82 and 2.1. so I will denote these two values by x and y. ठीक है, so now I have a function, okay, I have a function z in terms of x and y, correct? So this is the function in terms of x and y. Now next is what? Just calculate dz. dz is what? dz is what? Error, absolute error present in z. Okay, so let's so just calculate dz first, means take the derivative of this expression. ये सब कुछ क्यों करना आपको आगे समझ में आ जाएगा. So dz is what? So it's like x raised to n. So x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x raised to n minus 1. So 1/5 x raised to n minus 1. 1/5 minus 1, that will be minus 4/5. Then multiply this by derivative of bracket term. So what is the derivative of bracket term? x square का 2x dx and 2y cube का, sorry, हाँ, okay,
पे nx raised to n minus 1, ओके ठीक है। सो इट्स हाँ तो ये इन्होंने सेपरेट किया है। ओके, सो दिस इन ब्रैकेट, ये एक्चुअली ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता, देन इन ब्रैकेट 2x dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx एंड 2y का डेरिवेटिव। कुछ तो मिस्टेक है क्या इसमें? 6y स्क्वायर फिल दे। हाँ है ना, सो देयर मस्ट बी 6y स्क्वायर, है ना, 6y स्क्वायर dy, ये पार्ट आपका कॉमन ही आने वाला है। ओके, तो ये जंप दिखाई दे रहे स्टेप में। एक्चुअली टुडे आई डोंट हैव वैककॉम, सो आई नीड टू यूज दिस पीपीटी ओनली। ठीक है, सो अगर नहीं समझ में आता हो तो आप मुझे फ्रैंकली बोलो कि सर ये पार्ट नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, ओके, सो इन दिस डेरिवेटिव, ओके, मैं आपको इसके आगे का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ये रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो यन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये सबको पता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव यन एक्स रेस टू एन माइनस वन इन ब्रैकेट, और टू जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x dx। ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करो। देन प्लस 2y क्यूब, 2y क्यूब मीन्स व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2y क्यूब? इज 6y स्क्वायर dy। ठीक है, दिस यू विल गेट इन ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा था ना, उसमें उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। सो दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस इन ब्रैकेट। ठीक है, सो एट देन यू विल गेट दिस 1/5 x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेस टू माइनस 4/5 इंटू 2x dx प्लस 1/5 x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेस टू माइनस 4/5 into 6y square dy. Okay, is this derivative clear to everyone? Yes? Yes. Clear hai? Okay. And now, what is your next step? Yeah, so after simplification, you will get this. I think there is a mistake with this 3 that you can manage. Okay, and now, अभी आप क्या करने वाले हो? First, we'll calculate the value, okay, at x is equal to 4 and y is equal to 2. Okay, so if I calculate this, then for x is equal to 4 and y equal to 2, okay, I can calculate dx. Sorry, dx. Dx is equal to what? If x is equal to 4, if x is equal to 4, so this is your actual value. Yeah, and this is your measured value. मतलब आप x equal to 4 के लिए ट्राई कर रहे हो. So what is the error present here? So that error is dx, and that you can calculate by actual minus this. So 3.82 minus 4, that gives you error present in x, है ना. dy क्या है? dy means error present in y. So actual value is 2.1. So 2.1 और जो आपने लिए वहाँ पे 2. So 2.1 minus 2, that gives you error present in y. So using this you can calculate dx and dy. Okay, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, xy अप्रोक्सीमेट जाएगा था। हाँ, ये आपकी चॉइस है, बट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3.82 इज वेरी क्लोज टू 4, है ना, दैट्स व्हाई हियर आई 4। अगेन इट डिपेंड ऑन यू, आप 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, बट जितने मतलब आप जितनी लार्ज वैल्यू कंसिडर करोगे ना, उतना वो कैलकुलेशन आपका इंक्रीज होगा। सो दिस सिलेक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कुछ भी ले सकते हो, बट ऑलवेज ट्राई टू टेक नियरेस्ट वैल्यू टू दैट एक्चुअल वैल्यू, या आपको एट देन इन दो वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना है, 3.82 एंड 2.1 के लिए। ओके, सो फर्स्ट आई कंसिडर द नियरेस्ट वैल्यू। अगर आप नियरेस्ट वैल्यू लेते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर एग्जिस्ट होगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 3.82 थी, आपने 4 लिए तो कुछ ना कुछ तो एरर वहाँ पे आने वाली है। सो दैट एरर इज माइनस 0.18 एंड इन सेकंड केस दैट एरर इज 0.1। ठीक है, नाउ कैलकुलेट दिस z। नाउ दिस इज कैलकुलेट दिस z एट दिस वैल्यू 4 and 2। तो इसमें कुछ ना कुछ तो एरर प्रेजेंट होगी। ओके, ये जो z है, दिस इज नॉट योर एक्चुअल z, बिकॉज दिस z हियर आई कैलकुलेटेड फॉर x इक्वल टू 4 and y इक्वल टू 2। इट्स बेटर टू डिनोट दिस इज बाय z नॉट। ओके, सो दिस z नॉट gives you the value for x is equal to 4 and y equal to 2। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो एरर प्रेजेंट होगी। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि 3.82 के जगह पे आपने 4 लिया था, 2.1 की जगह पे आपने 2 लिया था, तो 100% जो आपने z कैलकुलेट किया वहां पे एरर एग्जिस्ट होगी। ओके, अगर इस z में एरर आ रही है तो आपको क्या करना होगा? हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट z फ्रॉम z नॉट? क्वेश्चन अच्छे से सुनो, ये जो z नॉट में कैलकुलेट कर रहा हूं, ये x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसका मतलब z नॉट की जो वैल्यू होगी विच इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगी। दैट एरर इज डी जेड नॉट। जो भी एरर होगी वो क्या होगी? डी जेड नॉट होगी। सो हाउ आई कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z? मतलब z कैसे कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम द z नॉट एंड डी जेड नॉट? एनीवन? सो पहले dz को कैलकुलेट करेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय लास्ट आंसर? अगर मैं z
ओके ये एक्चुअल मेरा z है. ओके मैंने क्या जेड माइनस x इक्वल टू जेड 4 के लिए x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 के लिए मैंने z कैलकुलेट किया है. ओके सो इन दैट केस आई विल गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ z. लेट अस डिनोट इट बाय z नॉट, है ना. तो क्योंकि कि आपने 3.82 के जगह पे आपने 4 लिया था, 2.1 की जगह पे आपने 2 लिया था, और उस केस में आपने z कैलकुलेट किया है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आ जाएगी. ठीक है. सो इफ आई ऐड दिस एरर dz नॉट, that gives me what? That gives me Total Z. that gives me z. Actual. Okay, Z. so that gives me my actual z. Okay, that is 3.82 square plus 2 in bracket 2.1 cube. ये अप्रोच समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बोलो. बाकी ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, यानी वैसे भी इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस नहीं है. ओके क्या मतलब अप्रोच क्या है, लॉजिक क्या है, वो सबको समझ में आ रहा है. आप क्या करो, मतलब सपोज इस केस में 3.82 स्क्वायर प्लस 2.1 क्यूब के केस में आपको कैलकुलेट करना है ना, दिस इज यूर जेड. ठीक है, आपने उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन क्रिएट किया. आपको पता है कि 3.82 के लिए कैलकुलेशन करना आपको पता है कि वो डिफिकल्ट है, तो आपने क्या किया है, x इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट किया है, बिकॉज x इक्वल टू 4 इज द नियरेस्ट वैल्यू फॉर 3.82, एंड आपने y इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट किया, विच इज ऑल्सो नियरेस्ट वैल्यू फॉर 2.1. ठीक है. हाँ, तो फिर उस केस में जो भी z आपको मिलने वाला है, लेट अस कंसीडर z नॉट. ओके, so this z naught is very close to z. This z naught is very close to your actual z. Okay, it's very close to your actual z. Okay, तो उसमें अगर आप जो z naught में जो एरर आपको मिल रही है ना, कुछ ना कुछ तो एरर रहेगी ना, क्योंकि z आपका एक्चुअल है, z naught अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो अगर मैं वो एरर भी z naught में ऐड कर देता हूं, जो भी वॉट एवर एरर प्रेजेंट इन z naught, इफ आई ऐड दिस एरर देन इट गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z. पण सर सर म्हणजे कमी क्या क्या जे आता एरर आले ते आपण ऍड करायला ते मग मायनस का म्हणजे पुढे पण जाऊ सी शकतो ना. जो भी एरर आएगी ना वो विद रिस्पेक्ट वो साइन कंसिडर होके आने वाली. ओके आप ओके यहाँ पे देखो ना, दैट एरर में बी पॉजिटिव, दैट एरर में बी नेगेटिव, डिपेंड ऑन व्हाट वैल्यूज यू आर सिलेक्टेड हियर, है ना. सर त्याला हाँ मल्टिप्लाय करावं लागतं ना, म्हणजे f of x plus h is equal to f of x plus h into f dash x. that is for your ordinary variable. In that case you will have only one independent variable. ठीक है, वो अप्रोच से आपको नहीं जाना है. ठीक है, दैट इज डिफरेंट अप्रोच. ठीक है, मैं आपको पहले इसमें सोल्यूशन दे. सर सो सी dz का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया था. नाउ जस्ट कैलकुलेट फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2. बिकॉज ऑफ दिस ओनली विल गेट सम एरर देयर. ठीक है, एंड देन z plus dz gives you the approximate value for this given z 3.82 and 2.1. ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसमें अभी क्या डाउट है. यस, क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलो बोलो. ये कैलकुलेशन में आपको एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करने वाला, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. ओके, स्टार्ट यही से करते हैं. आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना. तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, z इज इक्वल टू 3.82, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेस टू 1/5. एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, अभी आपको पता है इस एक्सप्रेशन में अगर आप x इज इक्वल टू 3.82 पुट करते हो, है ना, एंड y इज इक्वल टू 2.1 पुट करते हो, तो आपको गिवन जो भी गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर मिलने वाला है ना. ये इस एक्सप्रेशन में अगर आप x इक्वल टू 3.82 पुट करते हो और y इक्वल टू 2.1 पुट करते हो, आपको फाइनल आंसर मिलने वाला, दैट इज योर फाइनल आंसर. बट प्रॉब्लम क्या है, 3.82 के लिए मैन्युअली कैलकुलेट करना. ओके, अभी आप ये कैलसी का पार्ट छोड़ दो, है ना. 3.82 के लिए कैलकुलेशन करना या 2.1 के लिए कैलकुलेशन करना आपको डिफिकल्ट जा रहा है, इसलिए आपने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ दिस लेट अस डू दिस कैलकुलेशन फॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2. ओके, तो जब आप इस केस में कैलकुलेट करते हो, जो भी z होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू. मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है, ओके, 2 का स्क्वायर, सॉरी, फॉर x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए आपको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना, आपको पहले पता है उसका आंसर 4 है. बट अगर मैं 2.1 के लिए लेता हूं तो उसका स्क्वायर जो भी आने वाला है, ओके, विच इज वेरी क्लोज टू 4, एंड उनमें जो भी डिफरेंस होगा दैट इज योर एरर. ठीक है, सो व्हाट इज 2.1 स्क्वायर, हाँ, व्हाट इज 2.1 स्क्वायर, x इक्वल 4.01. हाँ, क्या है, व्हाट इज 2.1 स्क्वायर, 2 square plus 1 यस, 4.4100. 4100. ओके,
ठीक है, लेट इट बी। और एक हाँ, तो आपने अगर 2.1 के लिए कैलकुलेट किया ना, ठीक है, सो दिस वैल्यू 4.1 समथिंग कुछ भी, सो दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू दिस 4, तो उनमें कुछ ना कुछ तो एरर होगी, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज योर एरर। ठीक है, अगर आप वो एरर ऐड कर देते हो, अभी ये एरर माइनस मतलब इसमें जो आएगी ना, अभी ये वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है ना, 4 से ज्यादा आ रही है, मतलब एरर जो भी होगी वो माइनस होगी, तो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो देन यू विल गेट दिस 4। तो यही लॉजिक आपको यूज करना है। आप 3.82 2.1 के लिए आपको कैलकुलेट करना था, आप x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एरर जो भी होगी डिपेंड ऑन dz ना, अभी यहाँ पे पॉजिटिव एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एरर आ रही है, डिपेंड ऑन यूर dz, दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी निगेटिव, मतलब आपको 4.10 में से, है ना, जैसे 4.1 में अगर आप जो भी एरर यहाँ पे आने वाली है वो माइनस ही आने वाली है, क्योंकि तभी आपको 4 मिलने वाला है। ठीक है, तो वो जो भी साइन होगा इट डिपेंड ऑन dz, इट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो टोटली डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन, कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आप सारे पीछे के वैल्यू सिलेक्ट कर देते हो तो एरर पॉजिटिव आ जाएगी, अगर आप सारे आगे के वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो एरर निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपको देखना ही नहीं है कि साइन क्या है। ओके, जस्ट कैलकुलेट द एक्सप्रेशन एट नियरेस्ट वैल्यू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस केस में आप z नॉट कैलकुलेट करो, तो आपका z नॉट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.1 आ रहा है, कुछ तो वैल्यू यहाँ पे z नॉट की है विच इज 32, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें कुछ ना कुछ तो एरर प्रेजेंट है। ओके, तो टू कैलकुलेट दैट एरर कैलकुलेट dz एट सेम वैल्यूज। ठीक है, तो dz आप कैलकुलेट करो सेम वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर प्लस आ रहा है, मतलब वो पॉजिटिव एरर प्रेजेंट थी। सो दैट dz इज 0.012 एंड z नॉट इज 32 रेस टू 1/5। अगर आप इन दोनों के एडिशन करते हो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ z एट 3.82 एंड 2.1। समझ में आ रहा है सबको? एप्रो समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। इज दिस क्लियर? अब चाहो तो ये चेक करो सारा कैलकुलेशन, मुझे पता है कि आपको वो प्लस एंड माइनस में ही कंफ्यूजन है, सो दैट प्लस एंड माइनस टोटली डिपेंड ऑन योर एक्स एंड वाई। आप इन वैल्यूज को चेंज करो, इन सम स्टेज यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू, इन सम स्टेज यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसे आपका सिलेक्शन उस हिसाब से एरर आने वाली है, तो इसलिए एरर कैलकुलेट करते समय साइन टोटली डीजेड पे ही डिपेंड है। ठीक है, ओके, सो यू कैन रेफर दिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में हम सेट करते तो आप डायरेक्टली कैल्स में भी क्रॉस वेरीफाई करोगे कि विच इज़ द नियरेस्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्शियल डेरिवेटिव यू कैन से। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ओके, बट ये पीछे के जो क्वेश्चन थे ऑल दोज क्वेश्चन, ठीक है, दिस आर सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ओके, स्टिल इट इज माई सजेशन दैट डोंट गो विद दिस 5 एंड 6, आप कोई भी एक सॉल्व करो, बट इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राइट नाउ ये एप्लीकेशन एक्चुअली सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चंस आर हियर। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस 5 एंड 6 एग्जाम्पल, आप चाहो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व एनी वन एग्जाम्पल। ओके, बट दिस फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, बिकॉज इसमें लेंथ ज़्यादा नहीं है, yeah? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू आपको पहले राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में ये ऑलरेडी ये जो रिलेशन गिवन है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, विच इज दिस एग्जांपल इज वेरी सिमिलर टू 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इसका आंसर भी p परसेंटेज आने वाला है आई थिंक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लॉग लेना है, थर्ड क्वेश्चन में भी यू कैन चेक दिस। ओके, लॉग लेना होगा क्योंकि रिलेशन नहीं गिवन है, और यहाँ पे भी। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ लॉग। तो ये सारे एग्जांपल आप ट्राई करो एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द आंसर्स। आप मुझे आंसर बोलो आपके क्या क्या आ रहे हैं। ओके, विल वेरीफाई दिस आंसर्स, बट ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज ऑनलाइन में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। ओके, सिंपल केस में आपको इसके आंसर मिल जाते हैं। सो एंड नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या अभी तक हमने कंप्लीट किया है। ओके, इस सेकंड यूनिट में हमने जैकोबियन से स्टार्ट किया था। ओके, आई डोंट हैव वैकॉम टुडे बट स्टिल आई विल ट्राई टू राइट। या तो हमने जैकोबियन से स्टार्ट किया था, है ना, फर्स्ट उसमें इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट हमने पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट कंप्लीट किया था। दिस इज ऑल्सो यू कैन से द एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन इटसेल्फ। थर्ड क्या था? यस, व्हाट इज थर्ड? थर्ड एप्लीकेशन क्या लर्न किया हमने? हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव्स।
फंक्शनल डिपेंडेंस. ओके, याद रखो सारी चीजें, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ. फंक्शनल डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस. हाउ यू चेक फंक्शनल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस? क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन? J is equal to 0. हाँ, J इज इक्वल टू जीरो. इफ जैकोबिन इज जीरो इट इज डिपेंडेंट. ओके, तो ये तीनों टॉपिक एक्चुअली जैकोबिन पे ही डिपेंड है. तो अगर आप इनके क्वेश्चन देखते हो ना, सारे सिमिलर क्वेश्चन है. तो अगर आप वो 10 या 11 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो ना, उनसे ये सारे तीनों टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. सारे लिंक है, क्योंकि हर एक केस में आपको एट द एंड जैकोबिन ही कैलकुलेट करना है. देन आवर फोर्थ टॉपिक इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, एंड फिफ्थ टॉपिक इज नाउ मैक्सिमा मिनिमा. ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. आपने बेसिकली क्या किया है, 12th में आपने जितने भी एप्लीकेशंस लर्न किए थे ना, मे बी फ्यू आर टोटल न्यू एप्लीकेशंस फॉर यू, बट 12th में डेरिवेटिव के जितने भी एप्लीकेशंस आपने लर्न किए थे ना, वही एप्लीकेशन अभी आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्म में देख रहे हो. मतलब वहां पे आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो एरर का भी पार्ट आपने एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कैलकुलेट किया था. वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे फॉर्म में फंक्शन ही था नहीं था आपको वहां पे. ओके, वहां पे बस एक्स स्क्वायर था, तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी. ठीक है, नाउ द मैक्सिमा मिनिमा पार्ट इज ऑल्सो यू हैव कंप्लीटेड फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट, कैन एनीवन टेल मी हाउ वी एक्चुअली फाइंड द मैक्सिमा एंड द मिनिमा फॉर अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल? यह आपका 12th का पार्ट है. मैक्सिमा मिनिमा सबको समझ में आ रहा है? मैक्सिमा मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू. सो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ समवेयर लाइक दिस, ठीक है, हाँ, सो एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू दिस, यू विल गेट अ मैक्सिमा. ठीक है, एंड मिनिमा आपका क्या होगा? 0 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर ये टच कर रहा है तो लाइक दिस. ठीक है, सो या कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज योर प्रोसेस और कैलकुलेट? सर पहिले ते Differentiate आपण करेंगे. differentiate हाँ, करतो. तो आप Function ला. पहले क्या करते हो? लेट मी ड्रॉ वन मोर ग्राफ हियर. तो मुझे कुछ और पार्ट पे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लाइक दिस. ओके, हाँ हाँ, तो पहले आप क्या करते हो? फर्स्ट स्टेप इज टेक अ डेरिवेटिव. Differentiate हाँ, टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेट दिस वैल्यू इक्वल टू 0. okay, and from this you will get the values for x. What are those values? You will get some values for x like say a1 a2, ऐसे कुछ values आपको मिल जाते हैं. What are those values? Roots of the equation. ठीक है, roots of this equation, correct, Inflection roots of point. this first equation, but it has a special name. Inflection point. हाँ, roots of the equation 1, okay, that is okay, but मतलब आपके पास इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज थी. फॉर एग्जांपल आप अगर ये 0 to 10 लेते हो ना, General solution. हाँ, 0 to 10 लेते हो, तो यहाँ पे a1 a2 फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज मिल जाते, सो दैट 3 वैल्यूज हैज अ स्पेशल लोकेशन इन दैट ग्राफ एंड वी कॉल इट एज Inflection point. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट्स. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप कोई रैंडम वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी वैल्यूज. आल्सो वी कॉल इट एज एक्सट्रीम वैल्यूज. ओके, आई थिंक एक्सट्रीम वैल्यूज, स्टेशनरी वैल्यूज. ओके, So the inflection स्टेशनरी वैल्यूज. point. हाँ, यस यस, Inflection point होता है. स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, बट स्टेशनरी पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? Inflection. Sorry, your voice, just let me increase my, say it loudly. Inflection point. Okay, no, maybe शायद I don't know that. Yeah, yes, any other? स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हो? ग्राफ में आप बोलो या ग्राफ से आप मुझे बोलो, इसलिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है. स्टेशनरी पॉइंट आपने कैलकुलेट किया मतलब मीन्स व्हाट? Help you, how this help you to calculate maxima or minima of a given function? How these values are help you to calculate the maxima and minima of a given function? त्या पॉइंटच्या पुढे d square y by dx square is greater than 0 असला तर तो मिनिमम आणि Okay, आणि okay, d so square y आप by dx square. नेक्स्ट प्रोसेस बोल रहे हो. ओके ओके, मेरा क्वेश्चन अभी तक आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है. मेरा क्या कहना है, फॉर एग्जांपल आप एक रैंडम फंक्शन लेते हो, ठीक है, और उसके आपको उस केस में यू विल गेट ओनली 3 वैल्यूज, a1 a2 a3, है ना. कोई भी एक फंक्शन आप कंसिडर करो, आप dy by dx इक्वल टू 0 इक्वेट करते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेना ही है ना, सो लेट अस टेक x minus 1 and x minus 2.
ठीक है. व्हाट इज dy by dx? बोलो. dy by dx 2x minus 3. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है ना, विच इज 1 प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा ना. फर्स्ट फंक्शन Yes sir, 2x minus 3. हाँ, एंड विच इज इक्वल टू 0. हाँ, सो आई थिंक ये 3/2. चलो ये भी वर्क नहीं करेगा अच्छे से. चलो जाने दो, मुझे अभी क्रिएट करने में भी टाइम जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट 3 स्टेशनरी वैल्यूज. इट मीन्स वॉट जो मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टेशनरी वैल्यूज का मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ठीक है, जो भी मैक्सिमा एंड जो भी मिनिमा वहां पे एग्जिस्ट होगा दैट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर दिस 3 वैल्यूज. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट. व्हाट इज the importance of the stationary values or these extreme values? Okay, whatever maxima and whatever minima, okay, is there, okay, for a given function, okay, that is exist only for these 3 values. That is nothing but a stationary values. इनके बाहर आपको ऐसा कोई पॉइंट वहां पे नहीं मिलने वाला जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है या जिस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा है. इज दिस क्लियर? ओके, एंड ये जनरली कौन से पॉइंट्स आते हैं आपको ग्राफ से क्लियर होना चाहिए था. ओके, मुझे एक्चुअली मतलब ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग चाहिए था. dy by dx इक्वल टू 0 मतलब क्या कर रहे हो आप? Tangent equal to ऐसे पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ Zero. Parallel to x axis. हाँ, वेरी गुड करेक्ट बोला अभी आपने. ऐसे पॉइंट जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आप देखो एट दिस पॉइंट योर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये आपके स्टेशनरी पॉइंट में आने वाला है. ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट योर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एट दिस ये भी आपके इस स्टेशनरी पॉइंट में आने वाला है. एट दिस पॉइंट आल्सो योर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये भी एक पॉइंट आने वाला है. एट दिस पॉइंट आल्सो योर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी पॉइंट आने वाला है. ठीक है, सो 1 2 3 4. तो यहाँ पे जब आप इस ग्राफ के लिए अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना, फॉरगेट अबाउट द इक्वेशन, अगर आप इस ग्राफ के लिए कैलकुलेशन करते हो ना, इन दैट केस यू विल गेट 4 पॉइंट्स. और आप देखो सर अजून एक भेटेल ना ते 1 और 2 के बीच में एक triangle मध्ये. हाँ सॉरी, 5 करेक्ट, वेरी गुड 5. या दिस पॉइंट इज आल्सो देयर. ओके, या नाउ या सो जो भी मैक्सिमा मिनिमा आपका एग्जिस्ट होगा ना दैट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर दिस 5 पॉइंट्स. आप देखो, और आपको ग्राफ से तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमा सेकंड पॉइंट पे मिल रहा है एंड मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? 4 पॉइंट पे मिल रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पे. ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट्स. आप इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स में से आप बस हार्डली ऐसे 5-6 पॉइंट्स, 5-6 भी नहीं, जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन से, यू विल गेट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द मैक्सिमा एंड मिनिमा इज एग्जिस्ट. मतलब आपको अभी आप देखो ना 0 to 10 में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है ना मैन्युअली, ओके, तो आपको हर एक पॉइंट के लिए चेक करना होगा कि चलो इस पॉइंट पे देखो मैक्सिमा आ रहा है क्या, इस पॉइंट पे देखो मिनिमा आ रहा है क्या, हर एक पॉइंट के लिए चेक करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो आप इन इनफाइनिटी मेनी पॉइंट्स में से आप बस एक ऐसे 5 पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो. ओके, एंड आप उन्हीं 5 पॉइंट्स के लिए आप चेक करने वाले हो कि कहाँ पे मैक्सिमा मिलता है, कहाँ पे मिनिमा मिलता है. मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या करो, इन 5 पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करो. इसके आगे क्या प्रोसेस है, फंक्शन की वैल्यू इन 5 पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करो. जो वैल्यू आपकी जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी दैट गिव्स यू मैक्सिमा, जो वैल्यू मिनिमम आएगी दैट गिव्स यू मिनिमा. बट ये भी करने के लिए आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस है. आप क्या करते हो, हियर यू कैलकुलेट द डबल डेरिवेटिव. ये ग्राफ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. बट आप इसके लिए आप क्या करते हो, आप डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो. एंड देन व्हाट, इफ दिस डबल डेरिवेटिव एट से एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a1, इफ दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या मिलेगा A1 पॉइंट पे, A1 पॉइंट के लिए Minimum. if it is less than 0 then maximum. ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट अप्रोच है. इतना भी मतलब फंक्शन की वैल्यू भी इन पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमा चेक कर सकते हो एट सर्टन पॉइंट. ओके, एट दैट फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. ठीक है, एंड नाउ इन अ सिमिलर अप्रोच, ओके, इन अ सिमिलर अप्रोच नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मेथड फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. ओके, तो अभी आपको धीरे धीरे मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्या नेक्स्ट स्टेप आएगी. ठीक है, नाउ या सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमा. मैक्सिमा आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. फंक्शन सो एट पॉइंट a, b, a, b इज अ मैक्सिमा if f of a, b is greater equal to f of xy for all xy. Yes, simply फंक्शन की वैल्यू वहां पे you will get a maximum value at that point. You will get a maximum value of that function at ab. Then we call a, b as a maximum.
ठीक है। या सो इन दिस नाउ सी, अभी आप 2 वेरिएबल में हो, मतलब अभी आपके पास ऐसा फंक्शन आने वाला है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कौन से डायमेंशन में जाएगा? अभी आपके पास ऐसे फंक्शन गिवन रहेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो कौन से डायमेंशन में जाएगा? फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको कैसे लिखते हो? y इज इक्वल टू एक्स, ये करेक्ट है। फंक्शन ऑफ Yes, sir. फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको कैसे लिखते हो? z इक्वल, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ग्राफिकली, तो फंक्शन ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो आपने 12th में किया था, फंक्शन ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये जो आपका ग्राफ था ये कौन से डायमेंशन में जाएगा? 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, कौन से डायमेंशन में जाएगा? ये 2 dimensions ये में 2 डायमेंशन में जाएगा, बिकॉज वी हैव 2 वेरिएबल ना, y भी आ रहा है x भी आ रहा है। तो जब आप 2 इंडिपेंडेंट पे वर्क करते हो ना, ओके, सो इन दैट केस योर ग्राफ गोज इन 3 डायमेंशन। 3. को 12th में नहीं था, बिकॉज इन दैट केस यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है, जो आपको नहीं था वहां पे, ठीक है। शायद इंट्रोडक्शन है आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, ओके, बेसिक पॉइंट्स कैसे लोकेट करने हैं, हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी 12th में कंप्लीट किया है कि 2 डायमेंशन में मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करना है। 3 डायमेंशन में अभी आप कर रहे हो, ठीक है। इतना ही नहीं, ओके, यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमा इन 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च, ओके। सो मेनी PhD स्कॉलर नाउ आर वर्किंग इन दिस क्राइटेरिया बेसिकली, कि हायर डायमेंशन में, ठीक है, दैट यू कैनॉट इमेजिन, दैट यू कैनॉट ड्रॉ, ठीक है, बट हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट दी मैक्सिमम मिनिमा, ओके, एट से 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, उनमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली, ओके। सो या, सो दिस इज द डेफिनेशन नाउ। हाँ, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैक्सिमम मिनिमा, है ना, इन थर्मोडायनामिक्स, ओके, इकोनॉमिक मॉडलिंग, प्रॉपर्टी रिवेन्यू एंड कॉस्ट। So now let us discuss the process or let us discuss the method, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप्स एक्सप्लेन किए थे ना 1 वेरिएबल के, वही स्टेप्स अभी आपको यूज करने। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट्स, ओके। अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको ग्राफ से कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा, ओके, बट आपको फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल की मेथड ग्राफिकली भी क्लियर है, ओके, एंड मैथमेटिकली भी क्लियर है। तो मैथमेटिकली जो मेथड है ना उसका यूज करके, ओके, यूजिंग दैट यू हैव टू जनरलाइज फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। सो नाउ टेल मी वन बाय वन, इन दिस केस हाउ यू कैलकुलेट स्टेशनरी पॉइंट, आपको गेस करना है, जनरलाइज करते जाना है बस। तो इस केस में आप स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? Partial variable. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे नाउ वी हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या करना होगा? डिफरेंशिएट z with respect to x and equate this value equal to 0. Is this sufficient? Is this sufficient? No, sir. No. तो आपको एक और इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर करना होगा, बिकॉज वी आर नाउ इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब ये जो 2 टेंजेंट है ना, ओके, दिस 2 टेंजेंट, ओके, लेट मी राइट दिस, टेंजेंट एट z विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये स्लोप क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। It means what? Just consider डाबा z by डाबा x is equal to 0 and यहाँ पे और नहीं लिखा है मैंने, मतलब अगर a point which satisfy only this one equation, first equation, okay, is not your stationary point. We have to find the points x and y which satisfies this both equation. डाबा z by डाबा x is equal to 0 and डाबा z by डाबा y equal to 0. Those are your stationary points. तो जो भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट होगा ना वो उन्हीं पॉइंट्स के लिए ही एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। डायरेक्टली आप कंपेयर करके भी मतलब याद रख सकते हो प्रोसेस, 12th की जो प्रोसेस है वही से भी आप याद रख सकते हो। सो डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू y, सॉल्व दिस 2 इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर x एंड y, ओके। अभी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके, एंड दिस स्टेप वैरी फ्रॉम एग्जांपल टू एग्जांपल, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मतलब इन वन अप्रोच, कि एक ही अप्रोच से हम ज़्यादातर ये चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का पार्ट, ओके, कुछ एग्जांपल में अलग अलग अप्रोच से भी आपको जाना पड़ेगा, बट एट देन आई हैव टू जस्ट फाइंड दी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फॉर दिस 2 इक्वेशन, ठीक है। तो सपोज यू विल गेट दी रूट्स लाइक दिस, है ना, a1, b1, नेक्स्ट a2, b2, नेक्स्ट a3, b3 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इसके आगे थोड़ा अप्रोच आपका अलग है,
ठीक है. तो this is difficult you to imagine graphically and for me also. Okay, it is not that much trivial. ठीक है. Still research is going on in this category. Okay, मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक last point है जहाँ पे still those things are uncertain. So now here it is very difficult to imagine because 3 dimension में direction now there are 3 directions. ठीक है. So it's difficult to imagine that graph also, है ना. So in next step आपको क्या करना है. Now these are a special notations. ठीक है. Let me erase so that you will see it properly. R, S and T ये नोटेशन अभी आपको याद रखने हैं. ठीक है. What is R? R का मतलब क्या है कि उस फंक्शन को 2 बार x से डिफरेंशिएट करना है. That is daba square f upon daba x square. What is T? T क्या होता है. उस फंक्शन को 2 बार आपको y से डिफरेंशिएट करना है. डाबा स्क्वायर f अपॉन डाबा y स्क्वायर. एंड यस क्या होता है. मिक्स मतलब एक बार x से एक बार y से या एक बार y से एक बार x से या आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, है ना. डाबा y डाबा x भी कर सकते हो, डाबा x डाबा y भी कर सकते हो बिकॉज ऑल आवर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन दिस मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल. डाबा स्क्वायर f अपॉन डाबा x डाबा y इज ऑलवेज इक्वल टू डाबा स्क्वायर f अपॉन डाबा y डाबा x. नॉट इन जनरल, इट इज ओनली फॉर अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन. ओके. तो ये तीनों वेरिएबल आपको अच्छे से याद रखने कि आर क्या होता है. आर मतलब 2 बार x से डिफरेंशिएट करना है. यस क्या होता है. मिक्स होता है एक बार x से या एक बार y से एक बार x से. टी क्या होता है. 2 बार आपको y से डिफरेंशिएट करना है. ना आफ्टर दैट जिस पॉइंट के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है 1 बाय 1 उस पॉइंट के लिए आपको लिखना होगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस एवरीथिंग फॉर फर्स्ट पॉइंट a1 b1 के लिए सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. आपको क्या करना है. सो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस rt माइनस एस स्क्वायर एट दिस पॉइंट. ये सारा आपको इस पॉइंट के लिए करना है. या सिंपली आप क्या करो इसके आगे आप क्या करो इस बेटर आफ्टर दिस अगर आपको फर्स्ट पॉइंट के लिए सारा कैलकुलेशन करना है सो कैलकुलेट आर एट दिस पॉइंट a1 b1, कैलकुलेट यस एट दिस पॉइंट a1 b1 एंड कैलकुलेट टी एट पॉइंट a1 b1. ठीक है. हियर आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ओनली फॉर फर्स्ट पॉइंट एंड सेम आपको कंटिन्यू करनी है फॉर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन. ठीक है. सो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आर यस टी एट a1 b1 और फिर क्या करना है. इफ द डिफरेंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर आपका पॉइंट पे कैलकुलेट करने के बाद तो अगर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर ये डिफरेंस अगर आपका पॉजिटिव आता है तो उस केस में एक तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट होता है. दैट्स सेकंड स्टेप आई विल शो यू. उसी केस में अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव आता है उसी केस में देयर एग्जिस्ट आइदर मैक्सिमा और देयर एग्जिस्ट आइदर मिनिमा. ठीक है. तो पॉजिटिव आता है तो ही मैक्सिमा मिनिमा आने वाला है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. अभी ये मैक्सिमा मिनिमा उसके आगे कैसे डिसाइड करना है क्योंकि आपको ये तो क्लियर है कि इस कंडीशन से आपको ये तो समझ में आता है कि देयर एग्जिस्ट आइदर मैक्सिमा और आइदर मिनिमा. नाउ इफ आर इज पॉजिटिव देन विल गेट मिनिमा, इफ आर इज नेगेटिव देन वी विल गेट अ मैक्सिमा. ठीक है. तो वो जो मैक्सिमा मिनिमा होता है ना दैट मैक्सिमा मिनिमा डिपेंड ऑन द साइन ऑफ आर. अगर आर आपका पॉजिटिव आता है यू विल गेट अ मैक्सिमा यू विल गेट अ मिनिमा एट पॉइंट a1 b1. अगर आर आपका नेगेटिव आता है देन यू विल गेट मैक्सिमा एट पॉइंट a1 b1. तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा व्हाट अबाउट द वैल्यूज वेयर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव. पॉजिटिव के केस में तो क्लियरली पता है कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है एंड इट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ आर. व्हाट हैपन इफ आई कंसीडर द नेगेटिव साइन. जब आप नेगेटिव साइन लेते हो ना सो देयर is neither maxima nor minima. Such a point is called as saddle point. वो ना ही मैक्सिमा होगा वो ना ही मिनिमा होगा. ओके. मिडल पॉइंट्स समवेयर. ठीक है. सो इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. सो ऑब्वियसली आपकी लास्ट केस क्या है नाउ. पॉजिटिव के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है, नेगेटिव के लिए देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ओके. नाउ व्हाट इज आवर लास्ट केस. व्हाट हैपन इफ आई टेक दिस वैल्यू इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस केस इज टोटली अनडिसाइडेड. ठीक है. इस केस में यू कांट से दैट whether there exists maxima, minima, neither maxima nor minima. So this case is totally undecided. ठीक है. So still some investigation is going on under this case. ठीक है. तो ये जो केस है आर टी माइनस एस स्क्वायर ये आपको अभी सिलेबस में आने के चांसेस नहीं है बट स्टिल ओके कि आर टी माइनस एस स्क्वायर के केस में नाउ राइट नाउ दिस केस इज अनडिसाइडेड. वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0. Is this process clear to everyone? Is this process clear to everyone? Any doubt in this part? This method बोलो. No, sir. No, sir. तो okay. So today we'll stop here. Okay. क्योंकि वैक्यूम आने के बाद I can explain more in detail. So today we'll stop here and we'll discuss these examples of this method in next lecture. ठीक है. Okay.
You can put your roll number in chat box for the attendance. Okay, any doubt regarding any topic in unit 2? आप बोलो, कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोलो. ओके, अगर इमीडिएटली नहीं तो एटलीस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर आई कैन गिव यू दैट सॉल्यूशन. बट मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे नहीं आया कि जिसमें आपको डाउट आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें समझ में आ रही है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. तो जो भी टॉपिक है वो उसी दिन क्लियर करो, क्योंकि मैथ्स में आपको भी पता है कि फिर आगे जाके आपको कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं रहने वाला. स्पेशली फॉर मैथ्स यू कैन फोकस मोर ऑन द अदर सब्जेक्ट. ठीक है, कि इसमें बस आपको आपके लॉजिक क्लियर करने, एक बार लॉजिक क्लियर हो जाता है तो उसमें प्रिपरेशन नहीं आता कुछ भी. दैट सेव्स योर टाइम. Okay, and one more instruction is there. Just let me stop the